بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتا ہوں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی آنگلو بانگلو سیریز کی ہے۔ آنگلو بانگلو شیروں کی وادی میں۔ دریا میں ڈوبتے ہی کچھ لمحوں تک تو آنگلو بانگلو کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی اندھیری غار میں گرتے چلے جا رہے ہوں۔ ان کے ذہنوں پر اندھیرے کی چادر سی لپٹی چلی جا رہی تھی، مگر پھر اچانک یہ اندھیرے جھٹ گئے اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ وہ دونوں ابھی تک آپس میں لپٹے ہوئے تھے اور پھر انہیں سب کچھ صاف نظر آنے لگا۔ ان کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور اس پانی کے عین درمیان میں وہ بڑے مزے سے تیرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پانی میں ہونے کے باوجود ان کا سانس باقاعدگی سے آ جا رہا تھا۔ آنگلو بھائی، آنگلو بھائی، بانگلو نے اچانک آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا بات ہے بانگلو بھائی؟ آنگلو نے اپنا بڑا سا سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شیروں کی وادی کہاں ہے؟ بانگلو نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ شیروں کی وادی کہیں اس پانی کے تہہ میں ہوگی، جبھی یہ پانی ہمیں وہاں لیے جا رہا ہے، آنگلو نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، یقیناً وہ شیر پانی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں جب پیاس لگے گی ہم شیر پی جائیں گے، اس طرح شیر ختم ہو جائیں گے اور ہم شرط جیت جائیں گے، بانگلو نے خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے کہا۔ مگر شرط تو یہ تھی کہ ہم 2 سروں والے شیر کا سر کاٹ کر لے جائیں، آنگلو نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے تو یاد ہی نہ رہا، یہ کمبخت عورتیں اتنی شرطیں لگا چکی ہیں، اب تو یاد بھی نہیں رہتا کہ کون سی شرط تھی، بانگلو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ آنگلو کو جواب دیتا، اچانک پانی میں شدید ہلچل سی مچ گئی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ جتنی بڑی مچھلی انتہائی تیزی سے تیرتی ہوئی ان کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کا خوفناک منہ کھلا ہوا تھا اور خوفناک دانت چمک رہے تھے۔ ارے باپ رے، اتنی بڑی مچھلی! بانگلو نے چیختے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے، تم خود سوچو، اور پیاس لگی تو شیر پئیں گے، مگر بھوک لگی تو کیا کھائیں گے؟ وہاں کھانے کو تو کچھ ملے گا ہی نہیں، اب ایسا کریں گے کہ مچھلی کھائیں گے اور شیر پئیں گے، آنگلو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مگر ایسا نہ ہو کہ ہم سے زیادہ اس مچھلی کو بھوک لگی ہو اور وہ ہمیں ہی کھا جائے، بانگلو نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے جواب دیا۔ اب مچھلی کافی نزدیک پہنچ چکی تھی اور اس کے خوفناک دانت اور زیادہ بھیانک لگنے لگے تھے۔ ہاں، یہ بات تو سوچنے کی ہے، مگر اب پانی میں رہ کر تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، آنگلو نے کہا۔ تو پھر کہاں سوچیں؟ اور اگر ہم نے سوچا نہ تو مچھلی ہمیں کھا جائے گی، بانگلو نے بھی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ اس مچھلی کے پیٹ میں جا کر سوچیں، کم از کم وہاں پانی تو نہ ہوگا، آنگلو نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، وہاں ہم اکیلے ہوں گے اور اطمینان سے بیٹھ کر سوچیں گے، اور جب ہم سوچ لیں گے پھر باہر آ جائیں گے، بانگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے خوفناک مچھلی اپنا منہ پھاڑے ان کے قریب پہنچ گئی۔ ٹھہرو بڑی مچھلی، پہلے ہمیں اپنے پیٹ میں جانے دو، ہم وہاں بیٹھ کر سوچ لیں، پھر تم سے بات کریں گے، آنگلو نے ہاتھ اٹھا کر مچھلی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر مچھلی بھلا ان کے کہنے سے کہاں رکتی تھی، اس نے ان پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ اتنا خوفناک تھا کہ وہ دونوں بچ نہ سکے، اور وہ اس کے بڑے بڑے دانتوں کے درمیان سے گزر کر اس کے پیٹ کے اندر گھستے چلے گئے۔ مچھلی کا پیٹ اتنا بڑا تھا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بہت بڑے گنبد نما مقبرے میں آ گئے ہوں۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی پانی موجود تھا، مگر اس پانی کا رنگ سرخ تھا اور اس میں سڑانت کی سی بو آ رہی تھی۔ اب وہ دونوں اس گندے اور سڑے ہوئے پانی میں ڈبکیاں کھا رہے تھے۔ ارے باپ رے، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ توبہ توبہ، کتنی بدبو ہے، بانگلو نے کہا۔ ہاں، بڑی گندی بو ہے، میرے خیال میں یہ مچھلی کلیز ہے، نہ جانے کب سے نہائی ہی نہیں، آنگلو نے جواب دیا۔ نہانا تو ایک طرف، مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے زندگی بھر منہ ہی نہیں دھویا ہوگا، بانگلو نے مزید ٹکڑا لگاتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلو اس مچھلی سے کہیں کہ پہلے وہ نہا دھو لے، پھر ہم اس کے پیٹ میں آئیں گے، آنگلو نے کہا، اور بانگلو نے بھی سر ہلا دیا، اور پھر ان دونوں نے اس طرف تیزی سے تیرنا شروع کر دیا جدھر سے ہوا اندر آ رہی تھی، اور جلد ہی وہ مچھلی کے بڑے گلفڑوں میں پہنچ گئے۔ اس کا خیال تھا کہ مچھلی منہ سے سانس لے رہی ہوگی، اس لیے وہ اس کا منہ ڈھونڈتے ہوئے اس طرف چلے گئے تھے جہاں سے ہوا آ رہی تھی۔ اب انہیں کیا معلوم کہ مچھلی انسانوں کی طرح منہ سے نہیں سانس لیتی، بلکہ گلپھڑوں سے سانس لیتی ہے۔ کیونکہ مچھلی بہت بڑی تھی اس لیے اس کے گلپھڑے بھی بہت بڑے تھے اور وہ تیزی سے ہل رہے تھے۔ وہ دونوں ان ہلتے ہوئے گلپھڑوں سے چمٹ گئے۔ ان دونوں کے وہاں پہنچنے کی وجہ سے شاید مچھلی کو سانس لینے میں رکاوٹ سی محسوس ہوئی، اس لیے اس نے تیزی سے ادھر ادھر چکر لگانے شروع کر دی۔ مگر بانگلو جیسا موٹا آدمی جس گلپھڑے سے چمٹا ہوا ہو، پھر بھلا مچھلی سانس کہاں سے لیتی؟ اور پھر جب مچھلی کا سانس بالکل رکنے لگا، وہ انتہائی تیزی سے پانی کی سطح کی طرف
बुलंद होने लगी और फिर जैसे ही उसका बड़ा सा सर गुलफड़ों समेत पानी से बाहर निकला, उसने सांस लेने के लिए अपने बड़े से सर को इंतहाई तेजी से झटका दिया। ये झटका इतना जोरदार था कि उनके हाथों से न सिर्फ गुलफड़े छूट गए बल्कि वो हवा में उड़ते चले गए। और चूंकि मछली ने अपने सर को गर्दिश देकर झटका दिया था, इसलिए वो उड़ते हुए सीधे दरिया के किनारे पर मौजूद झाड़ियों में जा गिरे। और उनके गुलफड़ों से हटते ही चूंकि मछली की सांस ठीक हो गई थी, इसलिए वो तेजी से पानी में गोता खा गए और वो दोनों दरिया के किनारे झाड़ियों पर पड़े रह गए। चंद लम्हे तो इस तरह अचानक गिरने से उनके होश व हवास मुअत्तल रहे, मगर फिर जल्द ही वो होश में आ गए और उछलकर जमीन पर खड़े हो गए। अब वो दरिया के दूसरे किनारे पर मौजूद थे और उनके पीछे दूर तक घनी झाड़ियां फैली हुई थी। चली गई, वो गलीज मछली चली गई। मैंने तो उसे नहाने के लिए कहना था, बांगू ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो तो नहाती रहेगी, मेरा ख्याल है कि पहले हम नहा लें। मुझे तो अपने जिस्म से वही मछली वाली बू आ रही है, आंगलू ने कहा। और फिर बांगलू भी मान गया कि उन्हें खुद भी नहाना चाहिए, क्योंकि मछली के पेट के अंदर गलीज और सुर्ख रंग के पानी से उनका तमाम जिस्म और कपड़े लथड़े हुए थे। चुनाचे चंद लम्हों में उन्होंने कपड़े उतारे और फिर पहले उन्होंने दरिया के पानी में कपड़े धोने शुरू कर दिए और वो दोनों अपने अपने कपड़े धो रहे थे कि अचानक एक लहर आई और बांगलू के हाथ से उसके कपड़े छूट गए। अरे अरे मेरे कपड़े, बांगलू ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, मगर दरिया की तेज लहरें उन्हें दूर बहा कर ले गए। क्या हुआ? अरे कपड़े भाग गए, आंगलू ने जो अपने कपड़े धोने में मसरूफ था चौंक कर कहा। और फिर उसे भी अपने कपड़ों का ख्याल न रहा और उसके कपड़े भी उसके हाथों से छूटकर दरिया की लहरों की नजर हो गए। अरे तुम्हारे कपड़े भी भाग रहे हैं, बांगलू ने चीख कर कहा। और जब तक आंगलू मुतवज्जा होता, उसके कपड़े भी दरिया के वस्त में पहुंच चुके थे और अब वो दोनों मुख्तसर सी निकरें पहने पूरे जिस्म से नंगे दरिया के किनारे खड़े हैरत से पलके चुपका रहे थे। बड़े बेवफा निकले ये कपड़े, सचमुच ही भाग गए, बांगलू ने तकरीबन रोते हुए कहा। कोई बात नहीं, उनको भी जल्द पता चल जाएगा। जब मछलियां उन्हें पकड़ कर पहन लेंगी तब हमें बहुत याद करेंगे, आंगलू ने जवाब दिया। फिर तो वो मछलियां आंगलू बांगलू बन जाएंगी और शहजादी से शादी कर लेंगी और हम नाचते रह जाएंगे, बांगलू ने इंतहाई फिक्रमंदाना लहजे में कहा। हाँ, ये बात तो सोचने की है। हम शर्तें पूरी करते रह गए और शादी आंगलू बांगलू मछलियां कर लेंगी। मगर एक बात है बांगलू, आंगलू ने अचानक खुशी से उछलते हुए कहा। क्या बात है? तुम्हें खुशी हो रही है जबकि मुझे कवारे रह जाने पर रोना आ रहा है, बांगलू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। बात यह है कि बांगलू आंगलू बांगलू मछलियां ज्यादा से ज्यादा मछली शहजादी से शादी कर लेंगी तो करती रहे। इस दरिया की मछलियां नहाती नहीं, इस तरह मछली शहजादी भी नहाती न होगी और बदबूदार और गंदी होगी, आंगलू ने उसे समझाते हुए कहा। अरे हाँ, वाकई गंदी शहजादी मछली से आंगलू बांगलू मछलियां ही शादी करें। हम क्यों करें? हम तो उस शहजादी से शादी करेंगे जो रोज नहाती हो, बांगलू ने भी इस बार खुश होते हुए कहा। मगर हम तो अभी तक नहाए नहीं। अगर हमारे नहाने से पहले कोई नहाई हुई शहजादी आ गई तो फिर वो हम दोनों से शादी नहीं करेगी, आंगलू ने कहा। अरे हाँ, जल्दी से नहा लो, कोई ना कोई शहजादी आने ही वाली होगी, बांगलू ने कहा। और फिर उसने तेजी से दरिया का पानी उछाल उछाल कर अपने जिस्म पर डालना शुरू कर दिया। उसे नहाता देखकर आंगलू भला कब पीछे रहने वाला था, उसने भी तेजी से नहाना शुरू कर दिया। नहा धोकर जब वो फारिग हुए तो उनके जिस्म खासे हल्के फुल्के हो चुके थे और तबीयत में फरहत सी आ गई थी। मुझे तो नींद आ रही है आंगलू, हो सकता है कोई शहजादी ख्वाब में आ जाए और बगैर कोई शर्त लगाए मुझसे शादी कर, इसलिए मैं तो सो रहा हूँ, बांगलू ने झाड़ियों के ऊपर लेटते हुए कहा और फिर तेजी से आंखें बंद कर ली। वाह वाह, तुम्हारे ख्वाब में शहजादी आ जाए और तुम शादी कर लो और मैं जागता रहूं और कवारा रह जाऊं, आंगलू ने जवाब दिया। और फिर वो भी तेजी से झाड़ियों पर लेट गया और उसने भी आंखें बंद कर ली। ये शायद नहाने का असर था या फिर वो काफी दूर से वेश्यों के साथ पैदल चलते हुए आए थे कि लेट कर आंखें बंद करते ही वो गहरी नींद में खो गए। और फिर बांगलू के खौफनाक कराटों से इर्द गिर्द का माहौल गूंजने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई पनचक्की चल रही हो या हजारों भूत मिलकर चीख रहे हों। वो दोनों इतनी गहरी नींद सो रहे थे कि उन्हें दूर से शेरों के दहाड़ने की आवाज़ें जो तेजी से करीब आती जा रही थी सुनाई ही न दी और वो उसी तरह मस्त पड़े रहे। शायद वो भूल गए थे कि इस वक्त वो खौफनाक शेरों की वादी में है और शायद शेरों ने उन दोनों की बू सूंघ ली थी, इसलिए वो तेजी से उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। शेरों के दहाड़ने की खौफनाक आवाज़ें लम्हा ब लम्हा नजदीक आती जा रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे हजारों शेर मिलकर दहाड़ते हुए आंगलू बांगलू की तरफ दौड़े चले आ रहे हों। और फिर जब शेरों के दहाड़ों से आसपास की फिजा गूंज उठी तो सबसे पहले आंगलू की आंख खुली और दूसरे लम्हे वो यूं उछल कर खड़ा हो गया जैसे उसके पैरों में स्प्रिंग निकल आए हों। शेरों की दहाड़ें अब काफी नजदीक आ गई थी। बांगलू, अरे मोटे बांगलू, उठो जल्दी, शेर शहजादी बैंड बाजे बजाती चली आ रही है, आंगलू ने तेजी से खराटे लेते हुए बांगलू को झंझोड़ते हुए कहा।
क्या कह रहे हो? बैंड बाजे, मेरी बारात आ रही होगी। बागलू ने एक झटके से उठते हुए कहा। तुम्हारी बारात कहाँ से आ जाएगी? मोटे आदमियों की बारात आती नहीं, जाती है कब्रिस्तान की तरफ। आंगलू ने फलसफा झाड़ते हुए कहा। अरे बाप रे, ये तो शेरों की आवाज़ लगती है। अचानक बांगलू के छोटे दिमाग में ख्याल है। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि शेर शहजादी की बारात आ रही है, मुझको दूल्हा बनाने। आंगलू ने जवाब दिया। शेर शहजादी की बारात? मगर ये तो बैंड बाजों की बजाय शेरों की दहाड़ने की आवाज़ है। बांगलू ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। तेरी अकल वाकई मूंगफली जितनी है भाई। शेर शहजादी के साथ शेरों की आवाज़ें निकालने वाले बैंड ही होंगे। अब भला बांसुरियाँ और ढोल तो होने से रहे। आंगनू ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, बात तो समझ में आ रही है, यानी बैंड बाजे वाले शेर धुन बजाते आ रहे हैं। बांगनू ने सर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, अब तुम मेरा शेर शहजादी से निकाह पढ़ाने की तैयारी करो। आंगनू ने अपना कमजोर सा सीना जबरदस्ती फैलाते हुए कहा। मैं और तुम्हारा निकाह पढ़वाऊँ? ये क्या कह रहे हो? अपने निकाह के लिए कोई और ढूंढो, मैं तो अपना निकाह पढ़ूंगा। बांगनू ने गुस्सीले लहजे में जवाब देते हुए कहा। अरे हमारे कपड़े वापस आ गए हैं। अचानक आंगनू ने कहा। उसकी नजरें जरा दूर दरिया के किनारे पर जमी हुई थी, जहाँ उन दोनों के कपड़े ढेर की सूरत में पड़े हुए थे। मेरा ख्याल है कि मछलियों ने धोकर भेजे हैं, आओ उन्हें पहन लें, ऐसा ना हो कि ये फिर भाग जाए। बांगनू ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर वो दोनों तेजी से आगे बढ़े। कपड़े वाकई धुले धुलाए मौजूद थे। शायद मौजों ने उन्हें बाहर किनारे पर उछाल दिया था। उन दोनों ने जल्दी से अपने अपने कपड़े पहन लिए, और फिर जैसे ही वो कपड़े पहनकर फारिग हुए, अचानक सामने की झाड़ियों से सैकड़ों की तादाद में इंतहाई खौफनाक शेर नमूदार हुए। वो मुसलसिल धाड़ रहे थे, और उनकी सुर्ख आंखें शोले बरसा रही थी। अरे बाप रे, ये तो असली शेर हैं, बैंड बाजे वाले नहीं। आंगलू बांगलू ने खौफजीदा होते हुए कहा, और फिर वो दोनों खौफ के मारे तेजी से पीछे हटने लगे। शेर जो पहले दौड़ते हुए आ रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता गिरोह की सूरत में आगे बढ़ने लगे। जहां तक नजर पड़ती थी, शेर ही शेर थे। आंगलू बांगलू को देखकर शेरों की खौफनाक आंखों में बेपनाह चमक उभर आई थी। भाई शेरों, खुदा के लिए रुक जाओ, पहले हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे मेहमान हैं। आंगनू ने हाथ उठाकर शेरों से मुखातिब होकर कहा। मगर खौफ की शिद्दत से उनकी आवाज़ लिरज रही थी, और वो कदम बकदम पीछे हटता जा रहा था। बांगलू गरीब के मुंह से तो दहशत के मारे आवाज़ ही निकल नहीं रही थी। उधर शेर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले आ रहे थे, और पीछे वो खौफनाक दरिया था, जिसमें पहाड़ जैसी मछलियां मौजूद थी। आंगलू बांगलू दोनों को मौत अब साफ दिखाई दे रही थी। अरे कमबख्त, तो रुक भी जाओ, आगे बढ़े चले आ रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे पीछे दरिया है? अचानक आंगलू ने गुस्सीले लहजे में शेरों से मुखातिब होते हुए कहा। आंगलू, क्यों ना हम अपना रुख बदल लें, फिर हमारे पीछे दरिया न रहेगा। अचानक बांगलू को नहीं सूझी। अरे हाँ, वाकई इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। चलो जल्दी से रुख बदल लो, दरिया हमारे पीछे ना रहेगा। आंगलू ने अपना बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा, और फिर वो दोनों इंतहाई तेज से मुड़ गए। अब उनका रुख दरिया की तरफ था, और शेर उनकी पुश्त पर थे। शेर उसी तरह कदम ब कदम आगे बढ़े चले आ रहे थे। अब बेशक आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पीछे अब दरिया नहीं। आंगलू ने पहली बार खुशी से भरपूर लहजे में कहा। देखा, मैंने कैसी तजवीज़ बताई है, अब ये शेर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? बांगलू ने शौक लहजे में कहा। अब वो दोनों दरिया के किनारे पर पहुंच चुके थे, और उधर शेर और उनके दरमियान अब फासला खासा कम रह गया था, और वो दोनों दरिया की तरफ अपना रुख किए खड़े हुए थे, पर गर्दन मोड़कर शेरों को देख रहे थे। जब शेर काफी नजदीक आ गए, तो अचानक उनमें से एक बड़ा सा शेर आगे बढ़ाया, और बाकी शेर वहीं रुक गए। उन्होंने धारना बंद कर दिया था, अब वो सिर्फ गुर्रा रहे थे। वो बड़ा सा शेर आगे बढ़कर एक लम्हे के लिए रुका, फिर उसका पेट जमीन से लग गया, और दुम तेजी से दायरे की सूरत में घूमने लगी। उसके अंदाज से ऐसा महसूस हो रहा था तो हमला करने ही वाला है। देखो, ये बड़ा शेर हमारे सामने झुककर सलाम कर रहा है। आंगलू ने शेर को जमीन से लगते देखकर बांगलू से मुखातिब होते हुए कहा। हाँ, पर हमने तो उनकी तरफ पुश्त कर रखी है, और हम मुंह उनकी तरफ कर लें तो यकीनन ये बैठने के बजाय लेट कर सलाम करेगा। बांगलू ने जवाब देते हुए कहा। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? आंगलू ने कहा, और फिर उसने तेजी से अपना रुख बदला, और उसे रुख बदलते देखकर बांगलू भला कैसे पुश्त किए खड़ा रहता, वो भी तेजी से मुड़ गए। और फिर जैसे ही उनका रुख शेरों की तरफ हुआ, उसी लम्हे उस बड़े शेर ने उन दोनों पर छलांग लगा दी। उसका रुख बांगलू की तरफ था। शायद उसने सेहतमंद समझकर पहले खाने का प्रोग्राम बनाया था। अरे बाप रे, ये तो अब गले मिलने आ रहा है। आंगलू बांगलू के मुंह से निकला, और उसके साथ ही वो शायद शेर के गले मिलने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, और शायद इस तरह उनका आगे बढ़ना फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अब शेर का अंदाजा गलत हो गया, और वो बांगलू के सर से ऊपर होता हुआ सीधा पीछे दरिया में जा गिरा, और उसके अलग से एक खौफनाक धाड़ निकल गई। उसके साथ ही बाकी शेर भी दहाड़ने लगे। उनकी आवाज़ों से अब बेपना
गुस्सा झलक रहा था। अरे अरे, ये तो दरिया में जा गिरा। उन दोनों ने बेख्तियार मुड़ते हुए कहा। मेरा ख्याल है नहाने गया है ताकि नहा धोकर हमसे गले मिले, आंगलू ने कहा। मगर दूसरे लम्हे उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि जैसे ही वो खौफनाक शेर दरिया में गिरा, किसी तरफ से वो पहाड़ जैसी खौफनाक मछली नमूदार हुई और फिर देखते ही देखते शेर उसकी फाटक जैसे धाने में गायब हो गया और उसके साथ ही मछली ने पानी में गोता लगाया और गायब हो गई। अब तो यकीनन उसे नहाना पड़ेगा, बड़ी गंदी मछली ने उसे खाया है, आंगनू ने खुशी से कलकारी मारते हुए कहा। उसी लम्हे अचानक तमाम शेर मिलकर खौफनाक आवाज में धाड़े और फिर उन सब के पेट जमीन से मिल गए। अब शायद वो मिलकर उन दोनों पर हमला करना चाहते थे। अरे अरे रुक जाओ, इतने सारे शेरों से बराम कैसे गले मिल सकते हैं? एक एक करके आओ बेवकूफ़ो, आंगलू बांगलू ने चीख कर शेरों से मुखातिब होकर कहा। उसी लम्हे अचानक बांगलू की नज़र करीब मौजूद एक बड़े से दरख्त पर पड़ गई, जो न सिर्फ खासा मजबूत था बल्कि काफ़ी बुलंद भी था। क्यों ना इस दरख्त पर चढ़ जाए, इस तरह सारे शेर इकट्ठे न मिल सकेंगे। बारी बारी छलांग लगा कर आएंगे और गले मिलकर नीचे खड़े हो जाएंगे, बांगलू ने आंगलू से कहा। और फिर जैसे ही आंगलू ने सर हिलाया, वो दोनों तेजी से दरख्त की तरफ दौड़ पड़े। बांगलू चूंकि दरख्त के बेहद करीब था, इसलिए वो पहले तने के करीब पहुंच गया। उधर शेर उन दोनों को दरख्त की तरफ दौड़ते देखकर एकदम रुक गए। शायद उन्होंने हमले का इरादा बदल लिया था। और फिर बांगलू भारी जिस्म होने के बावजूद इंतहाई तेजी से दरख्त पर चढ़ता चला गया। आंगलू भी उसके पीछे था। चंद ही लम्हों में वो दोनों दरख्त पर ऊपर वाली शाख पर पहुंच गए। शेर दूर खड़े उन्हें हैरत से देख रहे थे। अब आओ बारी बारी छलांग लगाओ, गले मिल लो, उन दोनों ने शाखों पर बैठते ही शेरों से मुखातिब होकर कहा। शेरों ने जब उन्हें दरख्त पर चढ़ता देखा तो वो तेजी से दौड़े और दरख्त के गिर्द फैलते चले गए। एक बार के लिए उन सब ने सर उठाकर आंगलू बांगलू की तरफ देखा और फिर अचानक शेर आगे बढ़े और उन सब ने पूरी कुव्वत से दरख्त की तरफ छलांग लगा दी। जो कि शेर कसीर तादाद में थे, इसलिए उनमें से कई पूरी कुव्वत से दरख्त के तने पर टकराए और उनके टकरों से दरख्त बुरी तरह हिला और आंगलू बांगलू जो बड़े इत्मीनान से शाखों पर बैठे हुए थे संभल न सके और नीचे गिरने लगे। और उन्हें गिरता देखकर बाकी शेरों ने धारते हुए यकीन खुशी का इजहार किया। उधर अचानक गिरने की वजह से उन दोनों के हलक से चीखें निकल गई, मगर अब यह उनकी खुशकिस्मती थी कि आंगलू ऊपर से गिरकर एक निचली शाख से इस तरह लिपट गया कि उसका धार नीचे था, जबकि दोनों बाजू शाख की दूसरी तरफ थे। इस तरह वो सीने से शाख से लटका हुआ था और बांगलू के नीचे शाख तो नहीं थी, अलबत्ता टूटी हुई शाख का एक सिरा जरूर था। और फिर उसकी घेरेदार शलवार उस टूटी हुई शाख से अटक गई और वो उस शाख के सहारे हवा में एक लम्हे के लिए लटका रहा। दूसरे लम्हे उसके हाथ उस शाख पर पड़ गए जिससे बांगलू लटका हुआ था और उसने पूरी मजबूती से वो शाख पकड़ ली। पर अब ये उनकी बदकिस्मती थी कि शायद शाख इतनी मजबूत न थी कि बेवक्त उन दोनों का बोझ संभाल न सकी। चुनाचे एक जबरदस्त चिड़चिड़ाहट से वो टूटी और वो दोनों शाख समेत आयन नीचे खड़े हुए शेरों के दरमियान आ गिरे। उनके अचानक गिरने और शाख के टूटने की चिड़चिड़ाहट से एक लम्हे के लिए तो शेर घबरा गए और तेजी से पीछे हटते चले गए। मगर जैसे ही वो दोनों उठकर खड़े हुए, शेर एक बार फिर उनकी तरफ बढ़े। अरे खुदा का खौफ करो, पहले हमें चोटें तो सहलाने दो, कम बख्तो, आखिर हम ऊपर से गिरे हैं, चोटें तो हमें जरूर लगी हुई होगी ना। उन दोनों ने अपने जिस्मों को दोनों हाथों से टटोलते हुए कहा, मगर जाहिर है शेर भला उनकी चोटों की कहाँ परवाह करते थे। उन सब ने मिलकर धारते हुए उन पर हमला कर दिया और उन्हें यूं लगा जैसे शेरों का बादल सा उन पर छाता चला जा रहा हो। खौफ के मारे उनकी घिघी सी बच गई और दहशत से उनके दिमागों पर अंधेरे फैलते चले गए। खौफनाक शेर आंगलू बांगलू के दरख्त से गिरते ही उन पर टूट पड़े और जाहिर है कि सैकड़ों शेरों के बेक वक्त हमले के बाद आंगलू बांगलू के बच निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उधर दरख्त से गिरते ही और इतने खौफनाक शेरों को अपने ऊपर हमला करते देखकर वो खौफ और दहशत से बेहोश होकर गिर गए। मगर अजीब बात यह थी कि शेरों ने आंगलू बांगलू पर हमला तो जरूर किया, पर जैसे ही शेरों के पंजे और मुंह आंगलू बांगलू के जिस्मों से टकराए, शेर यूं उछलकर दूर जा गिरे जैसे उन्हें बिजली के झटके लग रहे हों। और फिर देखते ही देखते शेर आंगलू बांगलू से यूं दूर हटने लगे जैसे वो दोनों उनके लिए मुसीबत बन गए हों। शेरों के दहाड़ने से कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दे रही थी, जबकि उनके दरमियान आंगलू बांगलू दहशत के मारे जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। अब शेरों ने उन दोनों के गिर्द हल्का सा बना लिया था और वो बड़े कदमनाक अंदाज में दहाड़ रहे थे, पर आगे नहीं बढ़ रहे थे। यूं लगता था कि जैसे वो उन दोनों से खौफदीदा हो गए हों। अभी उन्हें दहाड़ते हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक दूर से शेर के दहाड़ने जैसी आवाज़ सुनाई दी, मगर ये इंसानी आवाज़ थी। अलबत्ता अंदाज शेर के दहाड़ने जैसा ही था। इस आवाज़ को सुनते ही आंगलू बांगलू के गिर्द मौजूद शेर अचानक खामोश हो गए और वो सब तेजी से मुड़कर उधर देखने लगे जिधर से ये आवाज़ आई थी। कद अदम झाड़ियों की वजह से
ادھر کوئی چیز نظر نہ آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود شیر یوں خاموش کھڑے تھے جیسے اس آواز کا ادب کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اچانک جھاڑیوں میں سے دو شیر نمودار ہوئے۔ یہ شیر باقی شیروں کی نسبت قد میں اونچے تھے اور انتہائی خوفناک تھے۔ ان میں سے ایک شیر کی پشت پر ایک نوجوان عورت سوار تھی جس نے شیر کی کھال کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت سنہرے بال اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے شیر کی پشت پر ایک سفید داڑھی والا بوڑھا سوار تھا۔ اس نے بھی شیر کی کھال کا لباس پہنا ہوا تھا، البتہ اس نے اپنے سر پر سفید پٹی باندھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں یوں شیروں کی پشت پر بیٹھے تھے جسے لوگ گھوڑے کی پشت پر سواری کرتے ہیں۔ آنگرو پانگرو کے گرد موجود تمام شیروں نے انہیں دیکھتے ہی اپنے سر جھکا دیے۔ یہ سارے شیر یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ نوجوان عورت نے اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس عورت کی بات سنتے ہی اس بوڑھے نے اپنے حلق سے شیروں جیسی گراہٹ بھری آواز نکالی، جس کے جواب میں آنگرو پانگرو کے قریب موجود ایک شیر نے دھاڑتے ہوئے کچھ کہا۔ اوہ، تو کوئی بدقسمت انسان ادھر آ نکلا ہے، شہزادی نے شیر کا جواب سنتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں وہ دونوں آنگرو پانگرو کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ارے، یہ تو دو آدمی ہیں اور شاید دونوں زندہ ہیں، اس عورت نے شیر کی پشت سے چھلانگ مارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آنگرو پانگرو کی طرف بڑھی۔ قریب آ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ بوڑھا بھی اب شیر کی پشت سے نیچے اتر آیا تھا۔ واقعی شہزادی صاحبہ، یہ دونوں زندہ ہیں، بوڑھے نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسی لمحے شہزادی نے اپنے حلق سے شیروں کی آواز نکالی اور پھر دو چار شیروں نے اکٹھے اس کی بات کا جواب دیا۔ یقیناً وہ دونوں شیروں کی نہ صرف زبان سمجھتے تھے بلکہ ان کی زبان میں بات بھی کر لیتے تھے، اس لیے جیسے ہی وہ شیروں جیسی آواز نکال کر ان سے کچھ پوچھتے تو فوراً ان کی بات کا جواب ملتا۔ بدبو، ان کے جسموں سے تو بدبو آتی ہے، شہزادی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزادی صاحبہ، شیر بتا رہے ہیں کہ ان کے جسموں سے پہاڑ مچھلی کی بدبو آتی ہے، اور تم جانتی ہو کہ شیر اس بدبو سے بہت ڈرتے ہیں، اس بوڑھے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پر پہاڑ مچھلی کی بدبو ان کے جسموں سے کیسے آ سکتی ہے؟ یہ بدبو اسی صورت میں آ سکتی ہے جب یہ پہاڑ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ جائے، اور ظاہر ہے اگر یہ اس کے پیٹ میں پہنچ جاتے تو زندہ واپس تو نہ نکل سکتے تھے، شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں جرح کرتے ہوئے کہا۔ اب اس بارے میں تو یہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ پہاڑ مچھلی کی بدبو ان کے جسموں سے کیسے آ رہی ہے، بوڑھے نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں وزیر بابا، میں اسے یہ بات ضرور پوچھوں گی، بڑے عرصے کے بعد تمہارے علاوہ کسی زندہ انسان نے باتیں کرنے کا موقع دیا ہے، ورنہ اب تک تو اگر بھولا بھٹکا کوئی آدمی آ جاتا تو یہ شیر اس کو کھا جاتے تھے، شہزادی نے کہا۔ ہاں، ویسے یہ کوئی بہت ہی خوش قسمت انسان لگتے ہیں جو اس طرح شیروں سے بچ گئے ہیں، میں انہیں ہوش میں لے آتا ہوں، وزیر بابا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سیدھا آنگلو کے قریب پہنچا۔ اس نے ایک ہاتھ آنگلو کے منہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک میں چٹکی پکڑ لی۔ اس طرح آنگلو کی سانس بند ہو گئی، اور زیادہ سے زیادہ 1 منٹ بعد ہی آنگلو کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، اور اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وزیر بابا نے دونوں ہاتھ ہٹا لیے۔ دوسرے لمحے ایک زبردست چھینک مار کر آنگلو ہوش میں آ گیا، اور ہوش میں آتے ہی وہ اچھل کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں شہزادی پر پڑیں اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور وہ یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے کسی نے مردہ جسم میں روح پھونک دی ہو۔ واہ واہ، خدا کی قسم لطف آ گیا، اتنی خوبصورت بیوی کے متعلق تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا، آنگلوں نے خوشی سے بادشاہ پھاڑتے ہوئے کہا، اور پھر وہ یوں تیزی سے شہزادی کی طرف بڑھا جیسے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لینا چاہتا ہو۔ ارے ارے، پیچھے ہٹو، یہ کہاں بھاگے آ رہے ہو؟ شہزادی نے اسے یوں بے ساختہ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر جھجکتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر آنگلو یکدم رک گئے، البتہ اس کی نظریں شہزادی پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے مقناطیس سے لوہا چمٹ جاتا ہے۔ واہ، کیسے پیچھے ہٹوں؟ خدا خدا کر کے تو بغیر شرط کے مجھے بیوی ملی ہے، اور اب میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنگلو نے کہا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بیوی بیوی کی رٹ لگا رکھی ہے، ادب سے جھک جاؤ پاگل آدمی، یہ شیر شہزادی ہیں، شیروں کی ملکہ، بوڑھے وزیر نے بےحد غصیلے لہجے میں کہا۔ شیروں کی ملکہ؟ لا حول ولا قوت، تمہارا دماغ شاید بہت بوڑھا ہو گیا ہے، ملکہ تو انسانوں کی ہوتی ہے، شیروں کی ملکہ تو کوئی شیر نہیں ہوگی، یوں کہو کہ آنگلو کی ملکہ، آنگلو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آخر تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ شیر شہزادی نے جھجھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں؟ تم مجھے نہیں جانتی؟ کمال ہے، حیرت ہے، اتنی کم علمی اچھی نہیں ہوتی کہ اپنے شوہر کو بھی نہ پہچان۔ میرا نام آنگلو ہے اور یہ میرا بھائی بانگلو ہے۔ ارے مگر بانگلو کہاں گیا؟ آنگلو نے بانگلو کا نام لیتے ہی چونک کر کہا، شاید ہوش میں آنے کے بعد پہلی بار اسے بانگلو کا خیال آیا تھا جو ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ارے یہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، چلو اچھا ہے بے ہوش ہی پڑا رہے، اگر یہ ہوش میں آ گیا تو مجھے آدھی شہزادی بانٹنی پڑے گی۔ یار پاگل بوڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کسی شیر کو کہو کہ بانگلو کو کھا جائے، پھر میں اطمینان سے سالم شہزادی سے شادی کر لوں گا۔
आंगनू ने वजीर बाबा से मुखातिब होते हुए कहा। शहजादी साहिबा, यह शख्स मुझे पागल लगता है। मेरा ख्याल है कि उसे वापस दरिया में धकेल देना चाहिए। वजीर बाबा ने गुस्सीले अंदाज में शहजादी से मुखातिब होकर कहा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसे शायद आंगनू का दिया हुआ किताब पागल बूढ़े पर बेहद गुस्सा आ गया था। हाँ, है तो पागल ही, पर बातें दिलचस्प करता है। तुम ऐसा करो कि उसके मोटे साथी को होश में ले आओ, शायद वो समझदार हो। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे, उसे होश में न लाना, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। आंगनू ने हाथ उठाकर पांगड़ू की तरफ बढ़ते हुए वजीर बाबा को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। खतरनाक आदमी क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शहजादी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। शेर शहजादी उर्फ आंगलू की मलिका, यह मेरा भाई बांगलू है। यह जब होश में आता है तो मुक्का मारकर बड़े बड़े जों के पेट फाड़ देता है। पर एक बात है कि मैं भी उससे कम नहीं हूँ। मैं सर से टक्कर मारकर हाथियों को पछाड़ देता हूँ। कहो तो टक्कर मारकर दिखाऊं। आंगलू ने बांगलू की बात करते करते अपनी तारीफ शुरू कर दी। दरअसल उसे अचानक ख्याल आ गया था कि अगर मैंने बांगलू की ज्यादा तारीफ की तो कहीं ऐसा ना हो कि शहजादी उसकी तारीफ से खुश होकर उससे शादी कर ले। यही वजह थी कि उसने बांगलू की तारीफ छोड़कर अपनी तारीफ शुरू कर दी थी। पर इससे पहले कि शहजादी उसकी बात का जवाब देती, वजीर बाबा ने बांगलू को होश दिला दिया और वो एक खौफनाक चीख मारकर उछल कर खड़ा हो गया। बांगलू, उनसे मिलो। ये मेरी बीवी शेर शहजादी उर्फ आंगलू की मलिका है। आंगलू ने जब बांगलू को होश पे आते देखा तो फौरन ही तारुफ कराना शुरू कर दिया ताकि बांगलू पर साबित हो जाए कि शहजादी अकेली उसकी बीवी है। शेर शहजादी आंगलू की मलिका और तुम्हारी बीवी? वाह, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम दो दो औरतों से शादी करो और मैं गंवारा ही रह जाऊं? मैं तुम्हारा भाई हूं, इसलिए एक औरत मेरी होगी। बस ठीक है कि शेर शहजादी मेरी बीवी और आंगलू की मलिका तुम्हारी बीवी। बिल्कुल ठीक है। और शेर शहजादी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा शौहर बांगलू हूँ। बांगलू ने बात खत्म होते ही तेजी से आगे बढ़कर सामने खड़ी शेर शहजादी का हाथ पकड़ लिया। मगर शेर शहजादी ने बेहद गुस्सीले अंदाज में उसका हाथ छटक दिया। परे हटो मोटे रिच, तुम्हारी ये जुर्रात कैसे हुई कि तुम मेरा हाथ पकड़ो? और तुम भी सुनो लंबे ऊंट, अब अगर तुमने मुझे बीवी कहा तो मैं शेरों को हुक्म दे दूंगी और वो तुम्हारी तिक्का बूटी करके रख देंगे। शहजादी ने जान छुड़ाते हुए इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे यानी आंगलू को लंबा ऊंट कह रही हो? उस आंगलू को जो दुनिया का सबसे बहादुर आदमी है। आंगलू को भी शहजादी की बात पर गुस्सा आ गया था। गलत बात मत करो आंगलू, दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर तो मैं हूँ। और सुनो शहजादी, तुमने मुझे मोटा रीछ कहकर मेरी तौहीन की है। इस तौहीन के बदले में तुमको मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं मुक्का मारकर तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा। बांगलू भला कब पीछे रहने वाला था, वो भी बोल पड़ा। खामोश रहो, तुम वाकई पागल हो और मैं अब ज्यादा देर तुम्हारा पागलपन बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहजादी ने इंतहाई कड़कदार लहजे में कहा और फिर वजीर बाबा से मुखातिब होकर बोली। वजीर बाबा? जी शहजादी साहब। करीब खड़े हुए बूढ़े वजीर ने अदब से सर झुकाते हुए जवाब दिया। शेरों को हुक्म दो कि इन पागलों की बोटियां उड़ा दें। उन्होंने मेरी तौहीन की है और मैं उन्हें अपने सामने मरता देखना चाहती हूँ। शहजादी के लहजे में बेहद गुस्सा नुमाया था। गुस्से की शिद्दत से उसका हुस्न और भी ज्यादा निखर गया था। मगर शहजादी साहिबा, आप शायद गुस्से में भूल गई है कि उनके जिस्मों से पहाड़ मछली की बू आ रही है, इसलिए शेर उनके नजदीक नहीं आ रहे। फिर वो मेरे हुक्म पर कैसे हमला करेंगे? वजीर बाबा ने बड़े मौजबाना लहजे में जवाब दिया। ओह, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा, शहजादी ने जवाब दिया। और फिर वो आंगलू बांगलू से मुखातिब हुई। तुम दोनों के जिस्मों से पहाड़ मछली की बू कैसे आ रही है? शहजादी के लहजे में इस बार गुस्से के बजाय हैरत का अंसर नुमाया था। पहाड़ मछली की बू? ये पहाड़ मछली क्या होती है? आंगलू बांगलू ने बेक वक्त सवाल किया। इस दरिया में एक पहाड़ जैसी मछली रहती है। यह मछली इतनी बड़ी है कि सालिम शेर को निगल जाती है। हम उसे पहाड़ मछली कहते हैं। तुम्हारे जिस्मों से उसकी बू आ रही है, यही वजह है कि शेर तुम पर हमला नहीं कर रहे। शहजादी ने उन्हें समझाते हुए कहा। ओह, तुम कहीं उस मछली की बात तो नहीं कर रही हो जिसके पेट में हम सोचने के लिए दाखिल हुए थे, मगर उसके अंदर बड़ी गंदी बदबू थी, इसलिए हम वापस बाहर आ गए थे। आंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा। मगर आंगलू, हम तो बाहर निकलकर खूब नहाए थे, फिर हमारे जिस्म से बू कैसे आ सकती है? बांगलू ने कहा। हमारे जिस्मों से बू आ रही है तो क्या हुआ, हम में से तो बू नहीं आ रही। और शहजादी से शादी हमने करनी है, जिस्मों ने तो नहीं करनी। आंगलू ने फलसफियाना लहजे में कहा। तुमने फिर शादी का नाम लिया। शहजादी को एक बार फिर गुस्सा आने लगा। अगर तुम शादी के नाम से चिढ़ती हो शहजादी, तो फिर ऐसा करो कि बगैर शादी के मेरी बीवी बन जाओ, आंगलू ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। दोस्तों, क्या आंगलू बांगलू की बातें सुनकर शहजादी उनसे शादी करेगी? ये शेरों को हुक्म देकर उनको मरवा देगी? ये सब सुनने के लिए मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलता हूँ अगली हंसी खुशी की कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।